Morning students. Now today we are going to start the practice set 1.3 from the geometry of basic concept in geometry. So in this practice set there are two questions. Question number 1, in that we have to write the statement if and then form, and from the question number 2 we have to write the converse of the statement. So in this question one statement will be given, we have to just write the statement in another form. Okay, the meaning will be same, meaning will not be different, the meaning of that sentence will be same, the direction of the sentence will be different. Like a grammar, if you see the grammar, okay, direct speech, indirect speech, okay, the speech is same but we have to write in direct form or indirect form. Okay, the same pattern of that, okay, it is given in your maths, okay, in the practice set 1.3. so let us come to the question. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ और देन फॉर्म. मतलब क्वेश्चन हमको गिवन है, दिया हुआ है, वही क्वेश्चन को हमको इफ और देन ऐड करके लिखना है. वी हैव टू राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ एंड देन. सो अंडरस्टूड द क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम में ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. द अपोजिट angles of a parallelogram are congruent. Congruent means equal, same, okay, and opposite angles means एक एंगल के सामने का दूसरा एंगल. जैसा मैंने अगर फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, दिस इज योर पैरेललोग्राम, ओके, अभी ये सपोज है पी क्यू आर एस, तो ये पी जो एंगल है तो इसका अपोजिट एंगल क्या बनेगा, आर, यस और नो, और ये जो क्यू एंगल है इसका अपोजिट एंगल बनेगा एस. ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. जो भी पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल क्या है, सेम है. मीन्स एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल S. सो यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी हैव टू ऐड द इफ एंड देन फॉर्म इन दिस स्टेटमेंट. यही स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा हमको रेक्टिफिकेशन एडिटिंग करना है. द मीनिंग विल बी सेम, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. मीनिंग इज व्हाट, हमें जो पूछा है द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो द सेम स्टेटमेंट विल बी देयर बट वी हैव टू राइट इन डिफरेंट फॉर्म. सो हाउ विल यू राइट, जस्ट लिसन. ओके, पैरेललोग्राम इज द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल किसको पता है, तुमको सबको पता है क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं. क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट एनी फोर साइडेड फिगर. स्क्वायर इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल बिकॉज स्क्वायर हैज फोर साइड्स. रेक्टेंगल इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स. Parallelogram is a quadrilateral, kite is a quadrilateral, rhombus is a quadrilateral. So quadrilateral is nothing but any shape, any object, any figure which consists four sides, which consists four sides. Quad means four, lateral means side. So quadrilateral combine, if you combine quadrilateral you will get four sided figure. So quadrilateral, it has a definition, that is four sided figure. So understood. So we have to write the statement using quadrilateral. So parallelogram is a quadrilateral. Okay, so we write if the quadrilateral is a parallelogram, अगर quadrilateral parallelogram होगा then the opposite angles of a parallelogram of a quadrilateral are congruent. So how will you write, listen here, if the quadrilateral, ये word हमें add करना है quadrilateral, if a quadrilateral is a parallelogram, okay, one sentence is complete. Then if a quadrilateral is a parallelogram, जब quadrilateral parallelogram होगा then the opposite angles of a quadrilateral are congruent. This complete your statement. Very simple. So this type of question will come for 1 marks. How I have written here, how we will write. The question is given, the opposite angles of a parallelogram are congruent. This is the question. I have changed the sentence. The parallelogram is there, so I have written if the quadrilateral is a parallelogram. Quadrilateral is nothing but अभी बताया मैंने any four sided figure. अगर rectangle भी आता तो we have to write quadrilateral. If it is square
then they'll also will write quadrilateral. If it is rhombus are there, rhombus is written there, so we have to write quadrilateral. But if it is a triangle is there, so we don't need to write quadrilateral because triangle has three-sided figure. तो three-sided figure को quadrilateral नहीं बोला जाता. So if the quadrilateral is a parallelogram, then the opposite angles of a quadrilateral are congruent. जो opposite angles है quadrilateral के वो क्या रहेंगे? Congruent रहेंगे. तो if और then ऐड हो गया. देखो तुम if और then देख सकते कहाँ मैंने ऐड किया. यहाँ मैंने if ऐड किया, ओके, और यहाँ मैंने then यूज़ किया. Understood or not? तो ये if और then का यूज़ हो गया. अभी same way we have to solve for second question. Second question is given that okay the diagonals of a rectangle are congruent. अभी यहाँ rectangle की बात आई. Rectangle is what? A rectangle is a four-sided figure. So again we have to use quadrilateral word. Quadrilateral word कहाँ use होगा? The quadrilateral word is used in that statement which statement containing four-sided figure. जो भी statement के अंदर four-sided figure के बारे में state किया जाएगा वही हम quadrilateral use करेंगे. So here the diagonals of rectangles are congruent. The question is given. So how will I write? ठीक है? So we have to write if the quadrilateral is a rectangle, then the diagonals are congruent. जो भी रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो फर्स्ट एक सेंटेंस हमने कंप्लीट किया, वन सेंटेंस. इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देन द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर congruent. Okay, so this completes the sentence answer. So I have written if the quadrilateral is a rectangle then the diagonals of a quadrilateral are congruent. Diagonals of what? Quadrilateral के. Quadrilateral means rectangle. Quadrilateral rectangle को quadrilateral बोला जाता. नाम है जैसा मेंस. मेन मतलब सब बॉय सब आदमी आ गए उसके अंदर, सबके अलग अलग नाम है. एक राज, एक अमन, ओके, एक रोहित, एक राहुल. सो दीज आर द नेम. बट पूरे ग्रुप का नाम क्या है? मैन, मेन. वैसा जो भी क्वाड्रिलेटरल एक नेम है उनका. ओके, तो स्पेसिफिक नेम क्या है क्वाड्रिलेटरल का? रेक्टेंगल. तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉपुलर नेम. ठीक है. सो क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट एनी फोर साइडेड फिगर. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. So we have written for the second question the diagonals of a rectangle are congruent. This was the question, and we have written if the quadrilateral is a rectangle then the diagonals of a quadrilateral are congruent. So we have complete question number 1. Now we'll come to the question number 2. Now this is the question number 2 from practice set 1.3. okay, so we'll come to the question number 2. So here the question number 2 is given. Write the converse of the following. Converse means what? Converse is nothing but the sentence. We have to write the sentence in opposite form. Opposite means form means जो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, द सेकंड स्टेटमेंट विल कम टू द फर्स्ट एंड फर्स्ट सेंटेंस विल कम टू द सेकंड. फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक सेंटेंस बोला, इफ अ मैन इज रिच देन ही इज हैप्पी. ओके, ये एक सेंटेंस है, तो इसका कन्वर्स क्या आएगा? इफ ही इज हैप्पी देन द मैन इज रिच. ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया. ओके, कन्वर्स किसको बोलते हैं? कन्वर्स इज नथिंग बट कोई भी एक सेंटेंस दिया है. फर्स्ट सेंटेंस है इफ अ मैन इज रिच, सेकेंड सेंटेंस है देन ही इज हैप्पी. ओके, अभी वो कन्वर्स करना है तो दिस विल बी लाइक दिस. इफ अ मैन इज हैप्पी देन ही इज रिच. अंडरस्टूड? सो लाइक दिस वी हैव टू राइट द कन्वर्स. सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन आंसर हियर ऑलरेडी. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू राइट द कन्वर्स एंड इनवर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टरनेट एंगल्स आर फाउंड बाय टू पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसके अंदर बताया हमको द अल्टरनेट एंगल फाउंड बाय टू पैरेलल लाइन्स. दो पैरेलल लाइन से जो एंगल फॉर्म्ड हो रहे. ओके, द अल्टरनेट एंगल फाउंड बाय टू पैरेलल. दो पैरेलल लाइन रहेंगे तो ये एंगल फॉर्म्ड होंगे ना. ठीक है, अल्टरनेट एंगल कैसा फॉर्म होते हैं पता है तुम लोग को? ओके, अल्टरनेट एंगल तो कैसा फॉर्म होते हैं? दो पैरेलल लाइन है और मैंने इधर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करा. सो यू कैन सी यू विल सी द जेड टाइप ऑफ एंगल. दिख रहा जेड टाइप ऑफ एंगल. सो दिस टाइप ऑफ एंगल इज नोन टू बी अ अल्टरनेट एंगल. यस सर नो?
तो ये तुम्हारा अल्टरनेट एंगल बन रहा, देखो इधर, दिस इज योर अल्टरनेट एंगल, यस और नो, जेड टाइप। तो इधर हमें क्या बताया, द अल्टरनेट एंगल्स फाउंड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस एंड वी हैव टू राइट द कन्वर्स ऑफ दैट स्टेटमेंट। क्या लिखना है हमें, कन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो हाउ विल हैव टू राइट, तो कन्वर्स लिखने के लिए दो का आंसर क्या दिया है, इफ, तो पहले क्या कहा, अल्टरनेट एंगल्स आर मेड बाय टू लाइंस, इफ अल्टरनेट एंगल मेड बाय टू लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, एंड इट्स ट्रांसवर्सल क्या आ गया, पहले आ गया, आर कॉन्ग्रुएंट, देन द लाइंस आर पैरेलल। सो पैरेलल फर्स्ट में था, सो इट विल कम टू द लास्ट। अब तुम सोचेंगे अल्टरनेट एंगल फर्स्ट में क्यों आए, तो सब्जेक्ट तो फर्स्ट ही रहेगा। जैसा मैंने बताया था, इफ अ मैन इज रिच देन ही इज हैप्पी, तो मैंने इफ अ मैन सेम रखा, इफ अ मैन इज हैप्पी मैंने सब्जेक्ट का वर्ब लिया, इफ अ मैन वही रखा, इफ अ मैन इज हैप्पी देन ही इज रिच, ठीक है। तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट क्या है, द अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल सेम रहेगा, मेड बाय टू लाइंस तक सेम रहेगा, सिर्फ ये पैरेलल लास्ट में जाएंगे और ट्रांसवर्सल आगे आएगा। ओके, सो कन्वर्स इज इफ द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस एंड इफ, यहाँ से स्टार्ट, इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, ये पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ से चेंज हो रहा है, इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर उसका ट्रांसवर्सल कॉन्ग्रुएंट रहेगा देन द लाइंस आर पैरेलल। सो दिस कंप्लीट द कन्वर्स फॉर्म, कन्वर्स स्टेटमेंट। नाउ विल कम टू द सेकंड क्वेश्चन हियर। इन द सेकंड क्वेश्चन यू कैन सी same question, the diagonals of a rectangle are congruent, so diagonals of a rectangles are congruent। अब इसका भी कन्वर्स करना है, तो कन्वर्स कैसे आएगा, if the diagonals of a quadrilateral are congruent, तो diagonal को पहले आ गया, congruent आगे आ गया, if the diagonals of a quadrilateral are congruent then that quadrilateral is a rectangle, rectangle बाद में आया, rectangle फर्स्ट था, congruent बाद में था, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तो हमने क्या लिखे, if the diagonals ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, उधर का अलग था, ठीक है। तो इधर हमने क्या करें, कॉन्ग्रुएंट को पहले लिए एंड रेक्टेंगल को बाद में लिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, डायगोनल्स, सो इफ द डायगोनल सेम रहेगा, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। सो यू हैव टू जस्ट चेंज द स्टेटमेंट एंड द मीनिंग विल बी सेम, मीनिंग विल नॉट बी चेंज। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट 2.3, that sorry 1.3, and with this we have complete this chapter, that is basic concept in geometry, and from the next week we'll start the new topic from algebra. Okay, so I hope you understood this example. Try to solve the maximum number of question with your own at your home. I'll give you some assignment, you have to solve, write these notes in your notebook, and thank you so much.